Namaste students. This is Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from under Department of Science and Technology from Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss the topic understanding various cloud plugins, which comes under the topic cloud computing, which comes under the course cloud computing. So firstly we need to know that what do we mean by plugin. So plugin means it is an element of a software program that can be added to provide support for a specific feature or functionality. It means if you want to add a special functionality or a feature, then you just add the feature with the help of a software code. And this with the help of a small software code or an element. Then this element can be added in your already existed program. So new features and functionality can be added according to your needs. So this is what you mean by basically plugin. So plugin means, other than that, in popular technologies like internet browser, audio video application, the ability to utilize the plugins makes product more versatile and allows the transparent and convenient customization according to the user's desired feature. So what we can do, so here we already discussed that we can add new features or functionality. So with the help of this plugin, we can make our product more versatile, but because we can add any software code according to our needs and any time when we need it. So this allows us to makes our product more versatile and allows transparent and convenient customization according to the user's desired feature. So we can customize our product according to the user's need. So plugin can also enable easier software updates or patches or additions by project collaborators. तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है किसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, उसके उसमें अलग उसके अंदर सॉफ्टवेयर पैचेस अलग से डालना या उसके अंदर एडिशन करना, ठीक है, किसकी मदद से, बाय प्रोजेक्ट कोलैबोरेटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है, उसको कुछ और फंक्शनैलिटी देनी है और यूजर की नीड के अकॉर्डिंग कुछ चीजें और डालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उस चीज को वापस उस चीज को अपने एनवायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं, अलग से ऐड कर सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएगा और ये फीचर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सब यूजर के डिजायर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो इसलिए इसकी मदद से क्या होगा, तो जब ये नया फंक्शनैलिटी हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर लेने लग जाएगा तो इजीली अपग्रेड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, इससे इसकी मदद से सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। सो प्लगइन्स कैन बी स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स लाइजनिंग। सो क्या यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है उसमें भी क्या है, हम लोगों को जरूरत पड़ती है प्लगइन के लिए भी। सो ये हम लोगों का टॉपिक, प्लगइन से मतलब क्या समझते हो। फिर प्लगइन को कैसे इंस्टॉल हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपके पास कुछ मेथड्स हैं कि बिगिन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इंस्टॉलिंग के लिए क्या करना चाहिए। फिर अगर आपको प्लगइन से रिलेटेड कोई लिस्ट देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन को डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए क्या कर सकते हैं। और उसके सिवा नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक कॉन्फिगरिंग द क्लाउड प्लगइन्स, मतलब तो क्लाउड के अंदर हम ये प्लगइन्स को किस तरह से यूज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज के बारे में ये टॉपिक। सो क्लाउड plugins are installed with a base configuration that can be updated later on, ठीक है। तो ये जो क्लाउड प्लगइन के बारे में जो हम बात करें, तो वो इंस्टॉल किए जाते हैं किसकी मदद से, एक बेस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। तो क्लाउड के अंदर कोई प्लगइन करना तो एक बेस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप उसको कर सकते हो और उस चीज को बाद में आप अपडेट भी कर सकते हो। तो इसकी डिस्कवरी फ्रीक्वेंसी से मतलब आप क्या समझते हैं, इन दिस फीचर with which a cloud plugin runs the discovery of the related cloud resources। मतलब इसके अंदर क्या होता है, it is the frequency with which a cloud plugin runs the discovery of related cloud resources। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों के पास क्लाउड रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये जो क्लाउड रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्कवरी करने के लिए क्या काम आता है, ये डिस्कवरी फ्रीक्वेंसी फीचर्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। लॉग्स के अंदर क्या होता है,
तो क्लाउड plugins आर इंस्टॉल्ड विथ स्टैंडर्ड लॉग लेवल एंड द फॉलोइंग डिफॉल्ट लॉग पाथ। तो क्या क्लाउड जब भी इंस्टॉल होता है तो किसकी मदद से होता है, एक स्टैंडर्ड लॉग लेवल की मदद से होता है और एक डिफॉल्ट लॉग पाथ यूज करता है। ठीक है, फिर सपोर्ट फॉर मल्टी सेट क्रेडेंशियल, इसमें क्या होता है, एट ईच डिस्कवरी द क्लाउड प्लगइन गोज द क्लाउड प्लगइन ग्लोज थ्रू ऑल द क्रेडेंशियल सेट्स। मतलब हर जो क्लाउड की आप डिस्कवरी करते हो, हर क्लाउड प्लगइन की डिस्कवरी के बाद में वो क्या करता है, वो किसके थ्रू जाता है, थ्रू देन इट गोज थ्रू ऑल द अवेलेबल क्रेडेंशियल सेट, द रिट्राइवर्स एंड द क्लाउड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर ईच सेट। तो हर उस चीज के लिए वो क्या देखता है, किन चीजों को देखता है, वो क्लाउड क्रेडेंशियल सेट्स को देखता है, क्लाउड के रिसोर्सेज को देखता है, उनको रिट्राइव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम लोग पास मिनिमम नंबर ऑफ फेल्ड डिस्कवरी अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो, इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव डिस्कवरी फेलियर्स फॉर अ क्रेडेंशियल सेट बिफोर इट इज स्किप। तो अगर कोई भी क्रेडेंशियल सेट जो आप लेना चाहते हो, ठीक है, अगर उसको उस चीज को अगर आप स्किप कर रहे हो, तो स्किप कब करोगे, यूज करने के बाद ही तो करोगे। तो ये क्या है, वो मैक्सिमम नंबर टाइम जो उस क्रेडेंशियल को आप लोगों ने क्या किया है, उसको skip किया। तो it is a maximum number of consecutive discovery failures for a credential set before it is skipped। उसको skipped करने से पहले वो कितनी बार फेलियर हुआ है, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेल डिस्कवरी अटेम्प्ट, तो कितनी बार उस डिस्कवरी अटेम्प्ट को, वो डिस्कवरी अटेम्प्ट फेल हुआ है, उस चीज को आप देखते हो इसके अंदर। प्रॉक्सी सपोर्ट, द AWS and the Microsoft Azure plugins must be able to access the related cloud services using HTTPS over the internet। तो ये जो AWS और Microsoft Azure के हमारे पास जो प्लगइन है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो वो एबल है किस चीज के, क्यों एक्सेस कर सके क्लाउड की सर्विसेज को, जो HTTPS के थ्रू दी जाती है, इंटरनेट के ऊपर दी जाती है। तो ये प्लगइन क्या करते हैं, क्लाउड की सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस इट इज पॉसिबल टू यूज अ प्रॉक्सी टू डू दैट। और दोनों केसेस में क्या है, हम प्रॉक्सी की मदद से ये काम कर सकते हैं, क्लाउड की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो द सपोर्टेड प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स, जबकि सपोर्टेड वो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो डिफर हो सकता है। अब इसमें बताएं कि हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक प्रॉक्सी को, जब फॉर है AWS प्लगइन, मतलब AWS प्लगइन के लिए हम लोग किस तरह से प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के लिए हम किस तरह उस प्रॉक्सी को, हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर प्लगइन के लिए हम किस तरह प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सिंपल सा हम लोगों का टॉपिक है, जिसके हम लोगों ने बारे में देखा कि प्लगइन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोगों के पास क्या टर्म्स है और उसको हम कैसे यूज करें। So thank you, that's all for today's session. I hope you like my session, and if you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.